Okay. Good afternoon. Good afternoon. This is regarding the Arunachal Literature Festival. This is an annual festival that we always have. We celebrate every year. This time will be the sixth edition of the ALF with the theme A New Dawn of Literature. Uh, the dates are from 13th to 15th. On the 13th, Honorable Governor will grace us as the chief guest with Honorable Home Minister Sri Mamanathum as guest of honor. This time we are having international participants. Our guests will be from Thailand and Nepal. This is the only second time I think that in the ALF that we are having international authors. We also, for the first time, are having a special space for children. It will be called the Children's Corner, where storytellers and people from like Tinkle, and other storytellers, they'll address the children. So I'll request that as many as children can, if they could come, it'd be very enjoyable for them. There'll be two venues. One is the Tagang Taki Hall and the other is the Kengsam Kenglang Hall. The details of which, why we have named them as such, I'll request Mr. Mukul Pathak to go into detail later. We will also be holding workshops on screenwriting and comic illustration. Please come. No, she's a part of us. Please come. Please come. Come. It's okay. Another first for us is we'll be having another satellite venue. A request has come in from the police, women's police station, if we could, involve their inmates, the children who are there. And as you know, in Anna's home, the inmates are those children, the victims of sexual and domestic violence. So we are trying to cater to them also. So in that venue, this venue is in the women police station itself, here in C sector. So we'll have two sessions on 13th and 14th. One will be from Uncle Musa, if you know, the Bambusa library from Lohit. And the other one will be taken by Miss Vijay Lakshmi Nagaraj. So this is the overall scenario. The department is basically providing logistic support to APLS, Arunachal Pradesh Literary Society, in terms of the venue, the accommodation, the transportation. So the department is doing the logistic part. As for the actual festival itself, I'll request either one of you, if you could tell about the session plans, the authors, the poets, whoever comes, like whatever sessions are going to be held. So over to you. या मुझे वहाँ आना है ओके नमस्कार आप सबको मैं डॉक्टर जमुना बेनी अरुणाचल लिटरेचर फेस्टिवल की मैं फेस्टिवल एडवाइज़र हूँ और ये बड़ी खुशी की बात है कि अरुणाचल लिटरेचर फेस्टिवल अपने 6th एडिशन पर पहुँच चुका है और अरुणाचल लिटरेचर फेस्टिवल हमेशा इनोवेशन पर विश्वास रखते आया। इसके साथ इनोवेशन के साथ जो इंक्लूसिवनेस पर भी अरुणाचल लिट फेस्ट का फोकस रहा है, जिसके तहत हमने जो हमारे जो पिछले जो लिट फेस्ट हुए
पिछले लिटफेस्ट की जो 2 एडिशन है, 2 एडिशन में हमने जो क्वेयर डिस्कोर्स है या थर्ड जेंडर जो डिस्कोर्स है उसको हमने इनफ स्पेस प्रोवाइड किया। और इस बार का जो 6th एडिशन है, 6th एडिशन में भी जितने भी साहित्य प्रेमी हैं, साहित्य प्रेमियों के लिए बहुत कुछ हमने इस 6th एडिशन में हमने उनके लिए बहुत कुछ संजो के रखा है। और अरुणाचल लिटरेचर फेस्टिवल टीम हमेशा ये इंश्योर करती है कि जो भी सेशन हम बनाएं, यानी कि ईच सेशन बहुत ही मेटिकुलसली प्लान करते हैं, बहुत ही बारीकी के साथ प्लान करते हैं। और हमारी जो रेगुलर सेशन है, हमारे रेगुलर सेशन शॉर्ट स्टोरी रीडिंग सेशन, पोइट्री रीडिंग सेशन, ये सेशन तो रहेंगे। इस बार भी ये सेशन रहेंगे, ये सेशन रेगुलर सेशन है तो हमेशा रहता ही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा और ऐसे क्या क्या सेशन है जो हमारे लिटरेरी लवर है, जो हमारे साहित्य प्रेमी है, जिससे अधिक लाभान्वित हो सके, मैं इस पर मैं बताना चाहूँगी। एक तो हमने ये महसूस किया, हमारे आदरणीय मुकुल सर, उनका भी काफ़ी लंबे समय से ये इनपुट भी रहा कि जो अरुणाचल का जो लिटरेरी सर्कल है, लिटरेरी सर्कल में हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से लंबी मूवीज बना रहे हैं, इसके साथ शॉर्ट फिल्म्स भी बना रहे हैं। चाहे आप फिल्म बनाएं या चाहे आप लिखें, आप चाहे राइटर हो या चाहे आप फिल्म मेकर हो, वी ऑल आर स्टोरी टेलर, हम सब स्टोरी टेलर है। लेकिन हमारा जैसे राइटिंग एक अलग मीडियम हो गया और फिल्म जो डायरेक्शन है या फिल्म जो स्क्रीन राइटिंग है वो फिर अलग मीडियम है, उसके लिए डिफरेंट अप्रोच चाहिए। तो मुकुल सर, हमारे रिस्पेक्टेड मुकुल सर का भी, जैसे मैंने कहा, उनका लंबे समय से एक इनपुट रहा कि ये इस पर एक सेशन होना चाहिए। तो हमारे जो एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स हैं उनके लिए हमने एक खास सेशन रखा है 14 तारीख को, 14 को एक सेशन रखा है स्क्रीन राइटिंग पर। पूरे 2 घंटे का ये वर्कशॉप होगा, 2 घंटे का कार्यशाला वर्कशॉप होगा, जिसमें आपको स्क्रीन राइटिंग की जो व्हाट इज स्क्रीन राइटिंग, स्क्रीन राइटिंग क्या होता है, उसका एक बेसिक जो भी उसका एक बेसिक नॉलेज और उसके बाद स्क्रीन राइटिंग को लेके उसके कितने डायमेंशंस हैं, उसके क्या क्या अप्रोचेस है, उसके चैलेंजेस क्या है, इस पर बात करने के लिए हमने जिस एक्सपर्ट को हमने इनवाइट किया, उनका नाम मिस्टर अशोक मिश्रा है। अशोक मिश्रा फिल्म जगत के बहुत ही जाने पहचाने एक फिल्म मेकर हैं। उनकी कई सारी फिल्में हैं, जैसे कटहल है, अभी नेटफ्लिक्स में ये मूवी चल रही है, आप देख सकते हैं। कटहल मूवी है, फिर वेलकम टू सज्जनपुर, वेल्दन अब्बा, उनके जो सारे जो मूवीज हैं वो सटायरिकल, उस तरह एक पैराडॉक्स को लेके चलने वाली फिल्में हैं। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अशोक मिश्रा 2 टाइम नेशनल फिल्म अवार्ड विनर भी हैं। तो अशोक मिश्रा जी हमारे खास इनविटेशन पर 14 तारीख को यहाँ रहेंगे, 14 को, और 2 घंटे का पूरा एक लंबा एक जो वर्कशॉप है वो एक लंबा वर्कशॉप लेंगे। तो जो भी एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स हैं, नॉट ओनली एस्पायरिंग, इवन जो एस्टैब्लिश फिल्म मेकर्स हैं, उनसे भी मैं अपील करूँगी कि आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जल्द ही जो सारा सेशन प्लान है वो अवेलेबल हो जाएगा, इसका हम लोग ये आप लोगों को प्रोवाइड भी करेंगे। स्क्रीन राइटिंग के बाद बदलते समय के साथ लिटरेचर का फॉर्म भी बदलता है, साहित्य का स्वरूप भी बदलता है। तो इसीलिए बदलते समय के साथ लिटरेचर ने कैसा अपना स्वरूप बदला। जैसे हमने शुरू में जब हमें पढ़नी होती थी तो हमें लिटरेचर केवल किताब के फॉर्म में अवेलेबल होता था, लेकिन आज आप देखेंगे ई जर्नल है, ई मैगजीन है, फिर इसके बाद किताबों के ऑडियो बुक भी बनने लगे हैं। आप पूरी जो पूरे के पूरी जो नॉवल है वो आप चाहे तो आप बिना पढ़े केवल उसको सुन भी सकते हैं। तो ये जो लिटरेचर भी जिस तरह से बदलते समय के साथ अपने आप को अडाप्ट करते जा रहे हैं, तो इस पर भी डिस्कशन के लिए हमने एक सेशन रखा है, बहुत ही मीनिंगफुल सेशन रखा।
और ई जोन डिजिटल नैरेटिव इस सेशन का नाम है। और इसके बाद इस बार जो हमारा जो लिट फेस्ट है, हमारे लिट फेस्ट में हमने बच्चों पर खास हमने फोकस रखा कि बच्चों के भीतर कैसे हम रीडिंग हैबिट इनकलकेट करें। जैसे हम सभी जानते हैं कि बच्चे धीरे धीरे मोबाइल के साथ उसका एक लत या एक जो एडिक्शन है वो बढ़ता जा रहा है। उससे दूर कैसे उसके भीतर हम रीडिंग हैबिट कैसे उसको हम डेवलप करें, कैसे इनकलकेट करें। तो उसके लिए जैसे हमारे लिटरेचर फेस्टिवल में बुक एग्जीबिशन होता है, पब्लिशर्स आते हैं अपनी किताबों का डिस्प्ले करते हैं। बुक एग्जीबिशन के साथ वो तो रहेगा, इसके साथ ये जो 3 दिन का प्रोग्राम है 13, 14 और 15, इस 3 दिन के प्रोग्राम में चिल्ड्रंस कॉर्नर नाम से एक परमानेंट एक कॉर्नर रहेगा, एक स्पेस रहेगा जहां बच्चे स्टोरी टेलिंग करेंगे। इसके लिए हमने जो लाइब्रेरी एक्टिविस्ट है, छोटे छोटे बच्चे हैं ये लाइब्रेरी एक्टिविस्ट, आप लोगों ने नाम सुना होगा बेम्बूसा लाइब्रेरी, तीजू बेस्ड एक लाइब्रेरी है बेम्बूसा लाइब्रेरी। हमने वहाँ के यंग जो लाइब्रेरी एक्टिविस्ट है उनको हमने इनवाइट किया। उन लोग आएंगे और बिल्कुल ही एकदम रोचक ढंग से स्टोरी टेलिंग करेंगे, ड्रामेटाइज करते हुए उस स्टोरी टेलिंग करेंगे। और जो हमारे जो यंग ऑडियंस है, यंग ऑडियंस उसमें छोटे छोटे बच्चों से लेके जो यंग अडल्ट है, उनके साथ उनका इंटरेक्शन होगा। और एक बात और ये है कि अडल्ट रीडर्स और जो यंग जो बच्चे जो यंग रीडर्स हैं, उसमें अगर सबसे बड़ा अगर हम फर्क या जो डिफरेंस अगर हम देखते हैं वो ये है कि जो बच्चे होते हैं उसका अटेंशन बहुत जल्दी डाइवर्ट होता है। तो अगर पढ़ने के लिए हम केवल उनको किताबें दे दें, उस किताब में कुछ इलस्ट्रेशन नहीं, कुछ पिक्चर्स नहीं, तो वो जल्दी उसका अटेंशन डाइवर्ट होता है। तो इसीलिए किस तरह से अगर चिल्ड्रंस राइटिंग, क्योंकि अरुणाचली राइटर्स में कुछ लोग कुछ ऐसे हमारे बहुत ऐसे रिस्पेक्टेड राइटर्स हैं जो चिल्ड्रन राइटिंग भी करते हैं, बच्चों के लिए लिखते हैं। तो ऐसे जो बच्चों के लिए लिखने वाले, तो उनके लिए कैसे बच्चों का जो अटेंशन है वो लंबे समय तक कैसे किताब या कुछ भी या फिर जैसे मैंने कहा कि जो डिजिटल बुक है वो कैसे उसको बांधे रख सकता है। इसके लिए जैसे इलस्ट्रेशंस के माध्यम से, कलरफुल पिक्चर्स के माध्यम से कैसे उसको बांधे रखा जा सकता है, इस पर भी वर्कशॉप कराने के लिए जो टिंकल है, अमर कथा है, अमर चित्र कथा, अमर चित्र कथा और टिंकल, इन सबके ये कहे कि इनसे इनवाइट किया, तो इन लोगों ने, अमर चित्र कथा वालों ने भी हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हुए, स्वीकार करते हुए ये लोग रहेंगे पूरे 3 दिन तक। तो जैसे मैंने कहा कि चिल्ड्रंस के साथ इनका बराबर का इनका जो इंटरेक्शन है, जो साबका है वो पड़ता रहेगा। इसके अलावा और ये हमारे लिए बहुत 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 खुशी की बात है कि जिस प्रदेश में सालों साल में एक किताब छपती थी, आज साल में मुकुल सर 10-12 किताबें तो छप ही जाती हैं, 10-12 किताबें छप जाती है। और ये इसका पूरा क्रेडिट अरुणाचल लिटरेचर फेस्टिवल को इसका पूरा क्रेडिट जाता है। तो ये अरुणाचल लिटरेचर फेस्टिवल का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ लिखने और पढ़ने की जो संस्कृति है वो विकसित हो रही है। और जैसे मैंने कहा कि साल में 10-12 किताबें छपना, ये जो धीरे धीरे जो बेबी स्टेप है इस तरह से जो हमें दिखाई दे रहा है, ये बहुत ज़्यादा हमें एनकरेज कर रहा है। तो इसीलिए जो हमारे यंग राइटर्स हैं जिन्होंने कुछ लिख लिया, कविता लिख लिया, कहानी लिख लिया, नॉवल लिख लिया, लेकिन कैसे पब्लिश करें, पब्लिशर खोजना अपने आप में बहुत काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कि कैसे हम उसको कैसे पब्लिश करेंगे। तो इसीलिए एक पूरा खास एक सेशन हमने पब्लिशर पर रखा है कि पब्लिकेशन की चुनौतियों को लेकर कैसे, और ये सारी जो पब्लिशर है, ये सारे पब्लिशर हम इसको कह सकते हैं कि ये दे आर द पब्लिशिंग जायंट। जैसे हिंदी के राजकमल हैं, वाणी प्रकाशन है, ये सारे लोग रहेंगे
और इन लोग जो नए राइटर्स हैं उन लोगों को बताएंगे कि गाइड करेंगे कि कैसे आप अपनी रचनाओं को आपकी जो अपनी जो राइटिंग्स है उसको कैसे पब्लिश करें, उसके स्ट्रेटेजी क्या होते हैं ये बताएंगे। और इस सेशन को खास मॉडरेट करने के लिए सत्या सरन जी उपस्थित होंगे, वे हमारे बीच रहेंगे। सत्या सरन जी उनके नाम से कोई परिचित नहीं है वो बात नहीं। सत्या सरन जी ने काफी लंबे समय तक जो एक फेमिनिस्ट एक वुमेन मैगजीन है फेमिना, फेमिना का बहुत लंबे समय तक एडिटर रही है। और सत्या सरन जी इस सेशन को मॉडरेट करेंगे। और इसके साथ मैं अरुणाचल लिटरेचर फेस्टिवल, क्योंकि अरुणाचल बेस्ड लिट फेस्ट है तो इसीलिए अरुणाचल लिटरेचर फेस्टिवल टीम का हमेशा से ये एक हम ये कहे कि हाँ कोशिश ही हम हमेशा से ये कोशिश रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो लोकल राइटर्स हैं, हमारे जो इंडिजिनस राइटर्स हैं, उनको हम सफिशिएंट स्पेस प्रोवाइड करें। और इस बार हमने सेशन आप लोग भी बाद में देख सकते हैं, ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मोर देन 30 राइटर्स, हमारे लोकल राइटर्स, मोर देन 30 लोकल राइटर्स, जिसमें बडिंग राइटर्स भी हैं और काफ़ी सीनियर राइटर्स भी हैं। सीनियर और दोनों बडिंग राइटर्स दोनों अलग अलग डिफरेंट सेशन में एंगेज्ड है। और इस बार हमने यंग बडिंग राइटर्स को कुछ सेशन, जैसे हमने बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सौंपा है, जैसे किसी सेशन को वो मॉडरेट कर रहे हैं, किसी सेशन का चेयर कर रहे हैं। और तो ये बहुत खुशी की बात है, जैसे मैंने कहा कि मोर देन 30 लोकल राइटर्स हमारे इस लिट फेस्ट में अपनी भागीदारी करेंगे। और इसके साथ क्लाइमेट चेंज एक ऐसा प्रॉब्लम है जिससे सारी दुनिया जूझ रही है। तो इस क्लाइमेट चेंज को लेकर लिटरेचर में उसका कैसा डिपिक्शन हो रहा है, कैसा उसका लिटरेचर में क्या उसका डिपिक्शन है, इस क्लाइमेट चेंज पर विचार करने के लिए इस पर हमने एक पैनल डिस्कशन रखा है इको क्रिटिसिज्म नाम से। इको क्रिटिसिज्म के अंतर्गत मतलब इसके तहत सारे इको पोइट्री और ये सब सारे जो सब्जेक्ट है वो इसके अंदर समाहित हो जाते हैं। और उसके बाद मीट द ऑथर है, मीट द ऑथर सेशन है। मीट द ऑथर सेशन में जेरी पिंटू जी फिर से दोबारा हमारे बीच मौजूद रहेंगे। पिछले लिट फेस्ट में भी पिछले आई थिंक 5th या 4th एडिशन में आए थे, इस बार दोबारा आ रहे हैं। इसके बाद हिंदी के अरुण कमल जी, हिंदी के बहुत ही प्रख्यात लेखक है अरुण कमल जी भी हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगे। हमने ये कोशिश किया यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में, यहाँ के कॉलेजों में जिन राइटर्स को हम पढ़ा रहे हैं, जिन राइटर्स की कविताएं या उनकी कहानी या उनका नोवेल करिकुलम में शामिल है, अगर उनको हम इनवाइट करें तो उनका सीधे स्टूडेंट के साथ, जो स्टूडेंट है वो सीधे राइटर्स के साथ उसका एक इंटरेक्शन करवा सके, इस तरह से हमारा फोकस रहा है। इसीलिए हमने ऐसे एक कलमकार यानी कि ऐसे हमने राइटर्स को इनवाइट किया जिनकी राइटिंग्स को हम पढ़ रहे हैं, और हमारे यहाँ के अरुणाचली स्टूडेंट है अपने कोर्स के माध्यम से, अपने करिकुलम के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो ऐसे हमने राइटर्स को इनवाइट किया। तो मीट द ऑथर्स के तहत ये सारे राइटर्स इनवाइटेड हैं। और उसके बाद हर तरह के रीडर्स होते हैं, हर तरह के अलग अलग टेस्ट होते हैं। तो किसी को हिस्टोरिकल थीम वाला कोई नॉवल पढ़ना पसंद है, तो किसी को क्राइम और डिटेक्टिव जासूसी उपन्यास। तो जासूसी उपन्यासों पर जो जासूसी लेखन है, इस तरह से जो क्राइम राइटिंग है, जो डिटेक्टिव फिक्शन राइटिंग पर एक खास इसका सेशन रखा, जिसको मॉडरेट करेंगे संजय मिश्रा सृंजय जी। ये भी काफी एक नामचीन राइटर है। तो ये सेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो इसीलिए मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि
एंट्री फ्री है, कोई टिकट नहीं, और कोई टिकट इसमें कोई एंट्री करने के लिए कोई टिकट फीस भरना है, इस तरह का किसी भी इस तरह का झंझट नहीं है। मैं सभी कॉलेजों के, यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं और भी जो बाकी जो एस्पायरिंग राइटर्स हैं, और उसके बाद जितने भी लिटरेरी लवर्स हैं, उनको उनसे मेरा ये अपील है कि 13, 14 और 15 ये 3 दिन, इन तीनों दिन आप अपने आप को फ्री रख के आप लोग प्लीज़ के कन्वेंशन हॉल आइए और उसके बाद हमारे कार्यक्रम में आप लोग शरीक हो। धन्यवाद। पायल इंचो। दोनों नाम की जो कॉल किया है